So, our next session, I'm delighted to introduce our next speaker. He actually needs no introduction. We're very fortunate to have as our chief guest from India, the Honorable Lieutenant General, Lieutenant Governor of J&K, Manoj Sinha, 1979 civil. You know, Manoj has been with us through all the alumni meetings every single time. So we are very thankful to taking that time out of your busy schedule to come join and support us. So on behalf of the entire alumni community, we'd like Sinha ji to come and give his remarks. He's going to talk a little bit about doing business in India and also the progress, enormous progress that's been made in J&K. Please welcome. Can we get stage lighting? Maybe you can increase the hall light. Make it brighter. Hall light. ये तो पुराना था भैया वो रेड वाला Dear friends, I'm delighted and honored to address you today here in California. Not only this is the birthplace of Hollywood, it is also where hundreds of startups were founded that have transformed the world completely. For a single place to have such an impact on the world is remarkable, and that impact has been felt all over the world. And nowhere was it felt more than in India. Not only do we also have Bollywood, but we are also becoming a joyous startup destination and are on the path of becoming the innovation capital of the world. This has been made possible through improvement in ease of doing business, abundance of talent, and the determination to transform India into a digital and economic superpower. It has been a long journey in a short span of time. We have come a long way after years of policy paralysis. मुझे कहा गया है कि how to do business in India and what is the progress in Jammu and Kashmir in the last 2 years. मित्रों, एक हमारे यहाँ बात कही जाती है कि मत पूछ वजह, तू पसंद है बेवजह. जब बात IIT BHU या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की होती है तो मैं मानता हूं कि ये महज एक इंस्टीट्यूशन नहीं है. वो गंगा के किनारे एक ऐसा एहसास है जिसे आज तक मुझे कोई ऐसा शब्द नहीं मिला कि मैं उसे डिजाइन कर सकूं. अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक इश्क है जिसे लेकर
आप कैलिफोर्निया हो, न्यूयॉर्क या लंदन हो, वैसा ही महसूस करते हैं जैसा कभी BHU कैंपस में महसूस करते थे। मैं चर्चा शुरू करूं, 2 लाइन कहूंगा कि खुदा या जज्बा ए दिल की मगर तासीर उल्टी है कि जितना खींचता हूं और खींचता जाए है मुझ पर, हुए हैं पांव पहले ही नबर्दे इश्क में जख्मी, न ठहरा जाए है मुझसे न भागा जाए है मुझसे। जो भी उस कैंपस में एक बार गया फिर दुनिया के किसी कोने में चला जाए, मगर पैरों और मन की डोर सदैव मालवी जी से बंधी रहती है। मुझे लगता है कि मैं जब बात करता हूं तो मेरे मन में या मेरी जहन में एक बात रहती है कि मुझ में जो कुछ अच्छा है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है, जो कुछ खराब है वो मेरा निजी जीवन है। अभी अनेक मित्रों ने अपनी बात कही है। टेलीविजन आप सब देखते हैं, जब सीरियल अच्छा चल रहा हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का ही अच्छा रहता है। विज्ञापन के तौर पर मैं हूं, उस मर्यादा का मैं ध्यान रखूंगा, क्योंकि यहाँ फाइनेंस, इनोवेशन की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं जो मैंने पहले शुरू किया था। 2014 में हम 180 देशों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहाँ थे, 142 रैंक थी हमारी। अभी 2020 में वी आर 63rd। India was one of the top 10 improvers for the 3rd time in a row, with an improvement of 67 ranks in 3 years. Just for your understanding, in 2014, India was behind like countries Yemen and Honduras. It was only through targeted government reforms that we have been able to make India a preferred place for startups and a fertile ecosystem for the new ideas and growth. In 2014, the Government of India launched an ambitious program of regulatory reforms aimed at making it easier to do business in India. The program represents a great deal of effort to create a more business-friendly environment, with the aim to improve the ease of living and the ease of doing business in India. More than 25,000 compliances have been reduced by the Government of India. This is no small number. Anybody who has ever tried to register a private limited or file annual taxes for the first time will know what I am talking about. In particular, we focused on 4 things: construction permits, getting electricity, and protecting minority investors and getting credit. There is still a lot of work to do in other areas, but we are improving one step at a time. The going has been tough, but it has not deterred us. In the construction permits parameter, India's ranking has improved from 184 in 2014 to 27 in 2019. The improvement has been mainly on the account of a decrease in the number of procedures and time taken for obtaining a construction permit in India. In the getting electricity parameter, India's ranking improvement
improved from 137 in 2014 to 22 in 2019. It takes just 52 days and 4 procedures for a business to get an electricity connection in India. As you know, it used to take several months, if not years, earlier. While reducing compliances and procedures and bringing a lot of processes online was not easy. It was really the changing of attitudes that was the real difficulty. The Indian of 2014 was complacent and self-satisfied. Getting people to accept their shortcomings and change for the better was hard. Attitudes are developed over years, and it takes years to change them. The government offices were the subject of several jokes, and rightly so. When Prime Minister Modi took over, one of his first order was business was to clean up this mess. Everybody had to give their all. This was service to the country. You could not out-corner us and do the job half-heartedly. He himself called the Pradhan Sevak, which was a clear signal to the world and to every government department that your first role is to serve. If a job could be done with one person, then it will be done by one person. The second person was allocated a different task. Suddenly, we had efficiency and productivity, and above all, accountability. We overhauled the system and created a well-oiled machine that brought about this change. It was like a well-run startup at the time, and all of us were hustling. Perhaps the biggest startup the world has ever seen or will ever see. It followed all the logical steps that a startup does. It started with a vision. Next came putting a team together and getting them to work in harmony towards a common goal. Improvise the way and keep pivoting to keep the engine running. The only difference is that there is no end goal here, no exists. It is a continuous process. India of today is improving. As I speak, by the time I am done talking, India will have improved and become better than it was before. I started talking. That's the change we have managed to bring. Now, some of you may find that I am saying over the top, but I will back it up with hard facts. The number of startups in India was not more than 400 in 2014, but the figure jumped to 70,000 by this year. This could not have been possible without PM Modi's ability to make decisive policy decisions, including in no-go areas of the past. The most striking example of the latter is the unlocking of the space sector and opening it up to provide players which was unimaginable even a decade ago. In 2015, the Prime Minister gave a momentous call for Startup India, Stand Up India, during his Independence Day address from the ramparts of Red Fort, which sent a message down the line that the priorities of the government headed by Mr. Modi were witnessing a departure from the status quoist approach of the past. It is this enabling environment that has led to be a vibrant startup movement across the country, and this is the power of leadership. There were entrepreneurs before 2014. There were ITs and VCs too.
There were so many good ideas as well that never saw the light of the day. It was only when a clear vision was laid down by our able leader that we were able to dream big and achieve big. And Mobi was India's first unicorn, and it achieved that status in 2011. By the end of 2014, there were only 11 unicorns in India. That is a rate of less than 3 unicorns a year from 2015 to 21. 97 startups turned unicorns, 69 of them in the last 3 years. In 2021 alone, we saw 44 unicorns. The tremendous work done from 2015 to 2019, both fruit in 2020, 21, and now 22. That is how working behind the scenes looks like. It is not always cutting ribbons and delivering speeches. Transforming a nation like India takes unimaginable hard work, strategic planning, and policy work, but it is all worth it. Today, India is a desirable place for startup, and we are seeing less brain drain than ever before. Our top talent wants to stay back and start their own companies and create wealth for the nation. We are doing our best to reward the decision by creating enabling policies and facilitative ecosystem. And it is working like a champ, but we are not done yet. Government of India is working on new policies to promote more startups. Even at the state level, efforts are being made under the new many states startup policy. Startups would get subsidies towards the rent and salaries of the employees. These are signs of change in India. We have also been able to attract a lot of foreign investment, which is a vote of confidence in India and the potential it has for the future. Indian startups have raised $93 billion so far, with the large chunks of that coming from international VCs like Tiger Global and Sukiya Capital. The latter is a California-based VCs firm. So we do have a deep connection with this place. जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पहली बार 2015 में आए थे, तो जो बात उन्होंने कही थी, साझा प्रयास सबका विकास, शेयर्ड एफर्ट प्रोग्रेस फॉर ऑल। अगर आप देखें तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए भी साझा प्रयास का मूल्य या उनकी उसका मूल अर्थ वो सामाजिकता थी, सोशलाइजेशन जिसे आप कह सकते। और मालवीय जी बार बार एक बात कहते थे कि प्रत्येक मनुष्य अपने को एक बड़ी समष्टि की इकाई समझकर उसके हित के लिए जीवित रहे और लोक कल्याण और लोक संग्रह को परम पुरुषार्थ समझे। मैं एक दो घटनाओं का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि आज जो बात पूरी दुनिया में हो रही है, ये जानना जरूरी है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो योगदान दिया था, अगर उसका जिक्र न किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बेमानी होगी। आज देश सक्षम हुआ है, या कम से कम IIT BHU के लोग सक्षम हुए। मैं मानता हूं कि उसमें महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का बड़ा योगदान है। 1916 में इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट में मालवीय जी के 50 पन्नों का 50 पेजेज एक विशेष नोट उसमें शामिल है
और मालवीय जी ने जो कुछ लिखा, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरे पास समय नहीं कि मैं डिटेल में जाऊं। एक बात जिसने नहीं पढ़ा है उसे पढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज, यहां तक कि जापान भी एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्रीज दोनों में हिंदुस्तान से बहुत पीछे था, लेकिन ब्रिटिश राज की पॉलिसी की वजह से इंडिया महज रॉ मटेरियल का सप्लायर बनकर रह गया था, जिससे वहां की इकोनॉमी को खोखला कर दिया गया। मालवीय जी के शब्दों को अगर मैं कोट करूं, उद्धृत करूं, द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, द ग्रोइंग इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स and the export of raw produce from India led inevitably to the impoverishment of the manufacturing classes in all parts of the country and drove a growing proportion of population to depend more and more upon the land. ये उस समय उन्होंने बात कही थी, और आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की बात आजकल हमारे यहाँ बहुत हो रही है। ये बात पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय कही थी। रेलवे, कॉमर्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये उनके प्रिय विषय थे। और शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जो उन्होंने चर्चा की, एक समय था कि जब ब्रिटिश शिप मेकर्स ने स्ट्राइक कर दिया था, और इसलिए कि हमारे देश की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी थी। और एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि नेविगेशन का ज्ञान अब दुनिया को हुआ है। उस जमाने में भी हिंदुस्तान के पानी के जहाज अर्थमेटिक के आधार पर दुनिया के देश के किसी कोने में जाते थे। हमारा जो स्टील था, दुनिया का सबसे बेहतर स्टील भारत में बनता था। स्टील लेकर हम जाते थे और दुनिया के कोने कोने से सोना लेकर आते थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया बने थे। ये समय नहीं है कि मैं इसमें विस्तार से जाऊं, लेकिन मैं मानता हूं कि उस समय कल्पना करिए मालवीय जी ने जो कुछ किया, और मैं मानता हूं कि अगर भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सबसे ज्यादा किसी एक संस्थान ने सबसे ज्यादा मदद की है तो बैंकों कहिए या ITBHU कहिए या ITBHU। उस समय कहीं देश में IIT नहीं थी, उस समय उनकी कल्पना थी। और 1916 में जब उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प लिया था, देश में पाकिस्तान हमारे देश का हिस्सा था, 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिना सरकारी सहायता के नहीं बनी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अकेली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो लोगों के सहयोग से बनी है, और मुझे खुशी है कि वहाँ पढ़े हुए लोगों ने उस परंपरा को कायम करते हुए आज जो कुछ मैंने देखा है, वो निश्चित रूप से मैं बधाई दूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने प्रयास शुरू किया। और मैं उसी परंपरा का इसे मानता हूं जो मालवीय जी ने शुरू किया था, कि वहां पढ़े हुए हमारे विद्यार्थी, हमारे अलुमनाई आज IITBHU को देश और दुनिया का एक बढ़िया इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए अपना सब कुछ योगदान कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, द 5G auctions that were successfully conducted recently means that over next 6 to 18 months, India will launch one of the world's largest 5G rollouts. It will transform the Indian internet landscape and throw open several significant opportunities for innovation around the 5G internet. Honorable Prime Minister on August 15, 2021 has clearly established the importance of startups and young innovators by terming them coming decade as India's decade, and that the Indian decade will be built by young Indian innovators. We are open to various collaborative models of research and development, IP development,
and will be happy to emerge with entrepreneurs from the US or anywhere in the world. 2 साल पहले 7 अगस्त 2020 को मेरे जिम्मे एक काम आया जम्मू कश्मीर का। आप सब परिचित हैं। कल अंबर रेस्टोरेंट में मैं लंच के लिए गया था। इस सभागार में कई साथी मौजूद हैं। उनसे एक सवाल मैंने पूछा, वो सवाल मैं फिर यहां दोहराना चाहता हूं। What is the name of Gandhi's father? बड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम किसी को मालूम है? अब ये मत कह दीजिए कि मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद उनके पिता थे। मैं पहले बता दें। एनीबडी कोई बता सकता है गांधी जी के पिता का नाम? गूगल मत करिए। मेरे पास एक दूसरा सवाल है। What is the name of सरदार पटेल's father? सरदार पटेल के पिताजी का नाम किसी को मालूम है? नहीं। सरदार पटेल की वाइफ का नाम किसी को मालूम है? आप खुद सोचिए। महात्मा गांधी से ज्यादा योगदान देश की आजादी में, देश के निर्माण में किसी का है? अगर सरदार पटेल की मैं बात करूं तो आज हिंदुस्तान एक है। तो आप सब जानते हैं कि 550 से ज्यादा रियासतें जब अंग्रेज छोड़कर के हिंदुस्तान गए थे तो उन्होंने सोचा था कि एक ब्रिटिश इंडिया है जिन पर उनका राज है, दूसरा एक ऐसा भारत है जिसे प्रिंसली स्टेट्स कहते थे, जिन पर राजाओं का शासन था। तो वो तो इस हिसाब से गए थे कि ये भारत एक हो नहीं पाएगा। ये श्रेय पूरा देश जानता है, सरदार पटेल को जाता है। 550 उसको विवाद है संख्या पर, इसलिए मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा। भारत सरकार के गजेटियर में 2 रिपोर्ट है, इसलिए मैं मोर देन 550 स्टेट्स को भारत के साथ पूरी तरह से विलय कर दिया। लेकिन देश में किसी को नहीं पता महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है। सरदार पटेल के बारे में कहा जाता है कि किसान नेता थे, लेकिन एक बात आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अहमदाबाद के उस समय सबसे लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, सबसे बड़े वकील थे अहमदाबाद के। ये हमारे देश का मैं मानता हूं कि दुर्भाग्य रहा है। और अभी बड़ी कोशिश हुई है, कुछ लोगों ने बड़ी रिसर्च की कि सरदार पटेल की वाइफ का फोटोग्राफ कहीं से नहीं मिल सका। Talent has no space, merit is no virtue। ऐसी परिस्थिति में जब हम देश को इस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं तो दिक्कतें आती हैं। You fall out of the family, you are thrown out। मैं जहां गया हूं जम्मू कश्मीर, वो इसका जीवंत उदाहरण। राजनीतिक बात मैं नहीं कर पाऊंगा, मगर ये जिम्मेदारी न रहती तो शायद खुल करके बोल पाते। दूसरे कारणों से जम्मू कश्मीर जाना जाता है। आप सब उन कारणों की मैं चर्चा नहीं करूंगा। 2 साल में बहुत कुछ बदला है। मैं कुछ आंकड़े आपके बीच रखना चाहता हूं। जब मैं गया था 7 अगस्त 2020 को, तो वहां परंपरा थी दरबार मूर्ति, महाराजा के जमाने से। नवंबर में, अक्टूबर अंत में श्रीनगर से कैपिटल शिफ्ट होता था जम्मू, और फिर मई में जम्मू से श्रीनगर। तो मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना 2020 में, इस युग में भी। मई में जब हम वापस आए तो कोई ट्रक नहीं आया। 2000 कमरे होटल में रेंट पर लिए जाते थे 6 महीने श्रीनगर में, और लगभग 1600 रूम्स लिए जाते थे जम्मू में। अगली बार जब हम लोग लौटे तो बंद हो गया।
अब दोनों सेक्रेटेरिएट चल रहे हैं, ये ऑफिस फुली फंक्शनल है और मेरे ऑफिस में अब कोई फाइल नहीं आती है, किसी के ऑफिस में नहीं जाती है, ये व्यवस्था लागू हुई। और मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि सबसे बाद में, देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे बाद में हमने शुरू किया है। बट इस गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी की यूटी रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज देश में नंबर 1 है और राज्यों में भी नंबर 5। भारत सरकार के पोर्टल में अगर आप देखेंगे, ई श्रम की रैंकिंग में बेस्ट यूटी अवार्ड जम्मू कश्मीर को मिला है। 100% मैंने कहा कि ये ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। ईज ऑफ डूइंग लिविंग में जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में शामिल है। जब मैं गया था, अभी मैं काउंसलर जनरल जी से बात कर रहा था, तो लगभग 67,000 करोड़ हमने हमारे जाने के पहले साल में यूटी के पैक्स में खर्च किए थे। प्रोजेक्ट पूरे हुए थे 9,229। अगस्त में मैं गया था, अक्टूबर में हमने बीम्स और जो व्यवस्थाएं भारत सरकार में वो हमने इम्प्लीमेंट किया। लोगों ने कहा साहब ये तो ऐसा आदमी आ गया कि काम अब सब बंद हो जाएगा। वहाँ टेंडरिंग की आदत नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की आदत नहीं थी, फाइनेंशियल सैंक्शन की आदत नहीं थी। अब ये सब इम्प्लीमेंट कर देने के बाद उसका परिणाम ये हुआ कि 4,000 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ अगले वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में, मैंने 63,000 करोड़ खर्च हुआ। एंड वी कंप्लीटेड मोर देन 21,000 प्रोजेक्ट्स। एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी हैव कंप्लीटेड मोर देन 50,700 प्रोजेक्ट्स। गति भी बढ़ी है और मैं, समय नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में जाऊं, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हर मामले में वाटर कवरेज अगर देखेंगे तो नेशनल एवरेज 50.30 है, जम्मू कश्मीर 57.36, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर नेशनल एवरेज 24.62%, जम्मू कश्मीर 54%, और ये पिछले 2 साल में 7% इंक्रीज हुई है। 54% हिम्मत मानिए कि ये लंबे समय चला रहा है। ये साबा के एक सज्जन बैठे हैं, इसलिए इनको मैं बताना चाहता हूँ। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हमारा नेशनल एवरेज है 1208 यूनिट, जम्मू कश्मीर में 1384 यूनिट, और 2 साल पहले ये कंजम्पशन था 998 यूनिट। 2 साल की ये वृद्धि है। पिछले 8 महीने में हाईएस्ट टूरिस्ट अराइवल 1,40,00,000 लोग जम्मू कश्मीर पिछले 8 महीने में आए हैं। अनप्रेसिडेंटेड, 25 साल में कभी इतने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं आए। मैं सोशल सिक्योरिटी की 53-54 स्कीम्स हैं, उसके बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वो सब 100% सेचुरेशन कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी में देश के अग्रणी राज्यों में हम हैं। सभी पंचायतों में यूथ क्लब बना दिए गए हैं, सभी पंचायतों में स्पोर्ट्स फील्ड बना दिए गए हैं। हम पहले यूटीआई स्टेट हैं जिसने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। एस्पिरेशनल ब्लॉक लॉन्च करने वाले हम पहले स्टेट या यूटी हैं। स्टार्टअप की रैंकिंग के इकोसिस्टम में हम टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में आ गए हैं। वहां 2 साल पहले शुरू किया था। सबको पेमेंट डिजिटल मोड में कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन हमारा 25% बढ़ा है। स्टैंप ड्यूटी 40% ग्रोथ है। एक्साइज कलेक्शन 30% ग्रोथ है। वहां एक बड़ी दिक्कत थी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं इतिहास की। अगर महाभारत काल में लैंड रिकॉर्ड्स ठीक रहे होते या डिजिटाइजेशन उस समय लैंड रिकॉर्ड्स का हुआ होता तो 5 गांव का ही झगड़ा था, पांडव और कौरव। तो वो महाभारत नहीं होती, भगवान श्री कृष्ण का फैसला कर दिए होते। आप में से श्रीलाल ठाकुर का नाम अगर कोई हिंदी पढ़ता होगा तो उसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, रायबरेली के। उनका एक बड़ा प्रमुख उपन्यास है राग दरबारी। उसमें एक पात्र है लंगड़।
जो लोग ईस्टर्न, जो लोग यूपी बिहार से इस शब्द का अर्थ समझते हैं, लंगड़ मैंने जिसका पैर खराब, उसमें एक पात्र है लंगड़, वो अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए तहसील से लेकर के और बाकी दफ्तरों तक दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते स्थिति है कि उसका दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने अपना रिकॉर्ड लेने का विचार त्याग दिया। जम्मू कश्मीर भी इसका शिकार था। अब लैंड डिजिटाइजेशन का काम और जितने रिग्रेसिव कानून थे वो बदल दिए गए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ 100% लैंड रिकॉर्ड्स विल बी डिजिटाइज्ड। वहां का पटवारी इतना ताकतवर था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज्यादा अधिकार था उसको। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में 15 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, सांबा नरेश आपको भी, सारे लैंड रिकॉर्ड दे दिए जाएंगे। कुछ हेल्थ पैरामीटर्स के बारे में मैं जरूर चर्चा कर दूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे टेस्ट भारत में होता है। नवजात शिशु मृत्यु दर नेशनल एवरेज 24.9 और जम्मू कश्मीर सिंगल डिजिट में है 9.8। शिशु मृत्यु दर नेशनल एवरेज 35.2, जम्मू कश्मीर 16.3। अंडर 5 मार्टेलिटी रेट नेशनल एवरेज 41.9, जम्मू कश्मीर 18.5। सेक्स रेशियो एट बर्थ नेशनल एवरेज 929, जम्मू कश्मीर 977। इंस्टीट्यूशनल बर्थ नेशनल एवरेज 88.6, जम्मू कश्मीर 92.4। फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन नेशनल एवरेज 83.8, जम्मू कश्मीर 96.5। मैंने आंकड़े इसलिए पढ़े कि आपको ये अंदाज हो सके कि पिछले 2-3 वर्षों में बदला क्या है। जितनी पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि ये सर्विसेज की अप्रूवल रेटिंग हमारी 80% से ज्यादा है। 80% लोग कह रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं वो ठीक मिल रही हैं, 20% लोग कह रहे हैं कि सब अच्छी नहीं है। जो भी हम खर्च करते हैं, वो मैंने बीम्स की चर्चा की थी, बीम पोर्टल की, किस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये पब्लिक डोमेन में है, कोई भी देख सकता है। पंचायतों को पहली बार वहां 3 टियर सिस्टम लागू किया है पंचायती राज का, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सबसे देर लागू हुआ है, लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट जो हुआ था भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायतों को और नगर पंचायतों को सारे डिपार्टमेंट और अधिकार सुपुर्द कर दिए गए। टेरर इकोसिस्टम पूरी तरह समाप्त हो। मैं जोर देकर ये बात कहना चाहता हूं मित्रों कि जम्मू कश्मीर में शांति खरीदने का प्रयास होता था। पहले कोशिश होती थी हाउ टू बाई पीस, अब हम शांति स्थापित करना चाहते हैं। वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पीस परमानेंटली इन जम्मू कश्मीर। मैं फिगर्स की डिटेल दूंगा, जरूरत नहीं है, मेरे पास सारे फिगर्स हैं। पिछले 30 सालों में इनोसेंट किलिंग्स कितनी हुई, पथराव कितने हुए, फोर्सेस की गोली से कितने लोग मरे, डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अपर हैंड है, कोऑर्डिनेशन तालमेल बहुत अच्छा है। एक मुगालता देश में बना दिया गया था, ये टेररिज्म या मिलिटेंसी खत्म नहीं हो सकती है। मैं इस सभागार में बहुत विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद की कमर टूट गई है और आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से पूरी तरह समाप्त करके रहने वाले। कुछ बातें सावधानी के तौर पर जरूर बरती गई है। मोटे तौर पर एक सिद्धांत कि बेगुनाह को छेड़ो मत, यानी जिसने गुनाह नहीं किया उसको छूने की जरूरत नहीं है, और गुनाहगार को छोड़ो मत। जिसने गुनाह किया है उसे बख्शने की भी जरूरत नहीं है। ये मूल सिद्धांत है। और मुझे खुशी है कि पिछले 2 वर्षों में
कोई भी निर्दोष व्यक्ति पुलिस या सुरक्षा बलों का शिकार नहीं हुआ। और जब ध्यान में ऐसी बात आई है, एक घटना हुई थी, तो उसमें जो कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो कठोरतम कार्रवाई की गई है। लोगों का विश्वास बहाल हो, ये कोशिश की जा रही है। अब बाजार बंद नहीं होते, पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई है। मैं अभी भारत में तिरंगा यात्रा बहुत जोर शोर से शुरू, आप सबने तस्वीरें देखी। कुछ स्थान थे जिनकी चर्चा दूसरे कारणों से होती थी। अब क्या वो शोपियां हो, पुलवामा हो, त्राल, यहाँ भी 8,000 10,000 नौजवान हाथ में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए सड़कों पर दिखाई पड़ा। एक बार कहा जाता था कि अगर 370 समाप्त हो गई तो भारत का तिरंगा लेने वाला कोई हाथ जम्मू कश्मीर में नहीं बचेगा। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि तिरंगे कम पड़ गए, जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने वालों के हाथ नहीं कम पड़े इस बार। और कोशिश की जा रही है, एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम लेकर के हम लोग जम्मू कश्मीर में आए। उसमें प्रधानमंत्री जी का, भारत के गृह मंत्री का विशेष योगदान है। और मैं आपको जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि देश के किसी राज्य से बेहतर इंडस्ट्रियल स्कीम हमने जम्मू कश्मीर के लिए बनाई है। वहाँ उपलब्ध है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। आजादी से लेकर 1 साल पहले तक कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ का हुआ था। आज की तारीख में हमारे पास 56,000 करोड़ 56,000 करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें 38,000 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है, काम हो रहे हैं। बाकी की आने वाले 3 महीने में दे दी जाएगी। केवल हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दूसरी जगहों के भी। एमआर का नाम आपने सुना है, यूएई का, वो 5 लाख स्क्वायर फुट का एक बड़ा माल श्रीनगर में बना रहा। जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों में आईटी टावर बनाने का काम कर रहा है। दुबई पोर्ट, डीपी वर्ल्ड, सांबा के बगल में जहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है, एक बड़ा इनलैंड कंटेनर डिपो बनाने का काम शुरू करने जा रहा है। तो बाहर के भी लोगों की काफी रुचि है। कनेक्टिविटी किसी भी स्थान के लिए आवश्यक है। कनेक्टिविटी के मामले में भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया है। जब मैं गया था तो श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, आज 104 हो रही हैं। जम्मू से 14 होती थी, आज 44 हो रही हैं। अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवेज और टनल्स के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो 2.5 महीने में 2-2.5 साल में पूरे हो जाएंगे। कटरा से दिल्ली 6 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। ऐसे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम शुरू हो गया है। मैं कह सकता हूं कि सबसे सस्ती बिजली हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में है। एक जो गफलत लोगों के मन में है कि वहां जाए कि न जाए, वो नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो सबसे कम क्राइम भी जम्मू कश्मीर में। ये दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा और हम आप सबका स्वागत करेंगे। मैं जानता हूं इस बात को, IIT-BHU में आप करें, मुझे दिल से खुशी हुई। मैं केवल आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, वो आपकी मातृ संस्था है, उसका कर्ज है, सफल करना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी अगर आप कुछ करेंगे तो ये समझिए कि भारत में एक बड़ा काम आप करने जा रहे हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेंगे। जो लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेशन आने वाले समय में हो जाए, उस लक्ष्य के लिए भी आप मदद करेंगे। पैसे से मदद करें जरूरी नहीं, अनेक प्रकार से आप मदद कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे सभी लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ, जो जिस क्षमता में चाहे वो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत करने में मदद करें। मैं आपको भरोसा देता हूँ 24/7 जब आप चाहेंगे मैं निजी तौर पर उपलब्ध हूँ। किसी अफसर से आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि जो काम मिला है उस काम को पूरी तरह से समाप्त करके ही वापस जाना है। और मैं समझता हूं कि ये काम हम सब आने वाले समय में पूरा करेंगे। मैंने थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया है, मुझे जाना भी है। अंत में मैं अभी वहां था तो इसके पास बैठा हुआ तो मैं 2-4 लाइनें लिख रहा था कि इन्हीं से मैं खत्म करूं। मैं 4 लाइनें करके खत्म करूंगा। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी हो सकता है, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।